सो आई विल पुट यू इन स्पॉटलाइट विद स्वामी जी। हाँ, आपको अनम्यूट करने को बोलूंगा, एंड यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल अस अबाउट योर प्रॉब्लम ब्रीफली। Sir, since 5 years I am suffering from thyroid. I have a huge hair fall and acidity problems. So, where the problem lies? Huh? We need to find out where the problem lies. It is not acidity, it might be acid reflux. It comes up, Reflex, sir. Correct. Reflex, sir. right? Acid So, reflex, you yeah. have a problem of something called as Nagvayu dosh. Acha. Within your body, unidirectional movement doesn't happen properly. If you eat, it has to go down. It doesn't go Acha. down properly. They told some food pipe is enlarged. For that only the food Yes, come. yes, yes. So, the peristaltic movement, which is due to Nagvayu, the Ah, peristaltic movement acha. of your alimentary canal, which actually pushes the food down, Ah, yes, sir. it is not happening properly. So this is called as Nagvayu dosha, right? So Nagvayu dosh cannot be corrected by any medicine. Only your body can correct it if you provide your body with the same kind of support. See, for such people, we give Nag Kumbhak. That's how we diagnose people and give them customized practice. If you do that, it'll be fine in some time. Hmm? Okay, so we have Rupali. Rupali ji, are you suffering from thyroid hormonal problems? मुझे thumbs up दीजिए. Give me a thumbs up. Rupali Bhamre, can you hear? Yeah, okay, okay. Just give me a moment, please. अनम्यूट करके थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, अनम्यूट करेंगे। Yes, sir. Actually, I'm suffering from thyroid. That means in my pregnancy, the thyroid was detected, and I'm suffering from it from last 17 years. That means 2007 it is detected. And till today, I'm suffering from this hypothyroidism. I'm taking 100 mg of Ultroxin and facing a lot of blotting problem. If you are able to see a lot of blotting Yes, problem, yes, yes, yes. then gases, that means the acidity, then very, So I'll very, tell you, I'll tell you, I'll tell you why this is happening. हाँ, आप कितना भी सिम्टम बताएंगे ना, उससे सॉल्यूशन नहीं मिलता. hmm. Even if you tell me 100 symptoms that you are facing, you'll not get the solution. So I'll just tell you the core problem which has happened. प्रेगनेंसी के बाद में आपको अगर याद है या फिर बूढ़ी बुजुर्ग कहती थी, they should do a lot of activities or lot of things to actually get the pregnant lady back to normal in the original state. जब भी आपके शरीर में से डिलीवरी होती है तो आपका पूरा शरीर खुल जाता है. इट जस्ट ओपन्स अप. यूल हैव टू अगेन इंटीग्रेट इट बैक टू नॉर्मल. इसको हम देसी भाषा में कहते हैं वात दोष आ गया. तो वात दोष का निवारण पहले करते थे, तो वो आपको अभी भी मालूम होगा, वो अजवाइन और सौंठ के लड्डू खिलाना, है ना, गूंद के लड्डू बिना, मतलब पुराने टाइम पे करते थे ऐसा. आफ्टर डिलीवरी दिस वॉज अ मस्ट. हवा नहीं लगने देना, है ना, प्रसूता को हवा नहीं लगने देते थे. धुआं देते थे, गोबर के उपले खाट पे लेटा के. दे वुड मेक द लेडी लाई डाउन ऑन अ, वो सूत के जो अपने क्या कहते हैं, जूट के जो बुने हुए खाट होते थे, उसके नीचे दे वुड बर्न द काउ डंग with a certain herbs in it, and the lady's body will get that धुआं, उसका जो स्मोक होता था ना, उससे वात कंट्रोल में आता. So nowadays you'll see we do not have that kind of an understanding, right? And we are tagging every dumb thing as science because science sells. आजकल जो बिकता है ना, लोग वही पैकेज करते हैं. तो साइंस के नाम पे वो ऐसी चीजें पैकेज कर रहे हैं जो दुनिया के शरीर को, लेडी के शरीर को बर्बाद कर रहा है. और हम उसे बड़े अच्छे से खरीद रहे हैं क्योंकि हमें बचपन से उसमें ट्रेन किया गया. वी आर मेकिंग दैट बाय. Why? Because we are trained from childhood in their education system. Right? So, with this, I want to tell you
that we do not have any understanding of how this body functions. The current dispensation, एलोपैथी को शरीर कैसे काम करता है उसका कुछ मालूम ही नहीं। द डम्बेस्ट फिरंगी जो होते हैं ना, डम्ब होते हैं, एकदम गधे होते हैं, और हम उनके गुलाम हैं, तो हम तो बर्बाद होंगे ही है, गारंटी है। पेपर पे लिख लीजिए, स्टैम्प पेपर पे लिख लो। थायराइड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, टेल मी। इंक्रीजिंग। एक इंसान थायराइड से निकला है क्या दवाई खा के? टेल मी वन प्रूफ। ओके, गिव मी अनदर प्रूफ। डायबिटीज से, इफ somebody हैज कम आउट ऑफ डायबिटीज इन द लास्ट 100 years। नहीं, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, नंबर वन कॉज ऑफ डेथ मालूम है आपको? कैंसर विल बिकम एपिडेमिक इन सम टाइम। हर घर में कैंसर होने ही वाला है। अच्छा, कमाल की बात, मोर इंटरेस्टिंगली, दे डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। पीपल हु डोंट नो व्हाई थायराइड इज हैपनिंग आर रनिंग द होल बिजनेस। आप लाइन लगा के जाते हो ना उनके पास थायराइड ठीक करवाने के लिए। कमाल की बात है, आपने सोचा है कभी? इसको मालूम ही नहीं है कि थायराइड क्या होता है, कैसे होता है, उसके पास आप लाइन लगा के जा रहे हो। सो वन लेडी डॉक्टर, इट इज नॉट, ये डॉक्टर का दोष नहीं है भाई, हमारे ही तो बच्चे हैं ना, हम तो उनको धंधा मतलब बिजनेस अच्छा हो जाए, उनका लाइफ अच्छी हो जाए, करियर अच्छा हो जाए, इसलिए भेजते हैं मेडिकल कॉलेज। वो तो प्रोटोकॉल में ट्रेनिंग लेके आते हैं। तो एक एक लेडी डॉक्टर थी, वो थायराइड का भी ट्रीटमेंट करती थी। जब मैंने उसे ये पूछा तो कहती है, पर हम अच्छे से बात तो करते हैं लोगों से। तो ठीक है, आप वहां पे गप्पे लड़ाने जाते हो मेरे ख्याल से फिर डॉक्टर के पास, क्योंकि वो अच्छे से बात करते हैं आपसे। बट वाई डिडंट यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ? कि इनको मालूम ही नहीं, इन्होंने किसी को ठीक ही नहीं किया, फिर मैं यहां पे क्यों खड़ी हूं, यहां क्यों बैठी हूं? क्या आपने ये सवाल किया अपने आप से? आपके शरीर में वात दोष है, बहुत बढ़ा हुआ है वात, पेन फैक्टर्स होंगे। इतना ही नहीं, दिमाग रुकेगा नहीं, परेशान रहोगे, और कोई नहीं ठीक कर पाएगा। नींद की दवाई खा के सोना पड़ेगा आगे चल के। डॉक्टर कहेगा अरे ले लो एनजिट, ले लो ना, एक एल्प्रेक्स ले लो ना, आपकी हालत और खराब हो जाएगी। वात दोष का मतलब होता है बॉडी का प्रेशर डिविएशन होना, प्रेशर में डिविएशन होना, प्रेशर कंट्रोल नहीं आ रहा। और कुंभक क्या है? प्रेशर कंट्रोल करने का तरीका। वात दोष का सबसे बड़ा इलाज क्या है? कुंभक। इसके अलावा कोई इलाज है नहीं, बाहर से आयुर्वेदिक दवाई भी उतना इलाज नहीं कर पाएगी आपका। अगर आपके शरीर में बल है, शक्ति है, स्ट्रेंथ है, तो आयुर्वेदिक दवाई भी हेल्प कर देगी, इलाज नहीं करेगी। यथा बलम तथा चिकित्सा, आपका शरीर ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। भगवान भी आ जाए तो नहीं कर सकता, भगवान आ जाए आपको ठीक नहीं कर सकता। लिखो, अखबार में छापो, स्वामी श्री राज विभु विभु ने बोला है, और मुझे कोई गलत प्रूव करके दिखाए। आपका शरीर ही ठीक करेगा आपको, कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती, कोई प्रूफ ही नहीं है उसका। दवाई अगर कोई ठीक कर देती है तो इसका मतलब आपके शरीर में जान थी, उसी ने ठीक किया। आप क्रेडिट किसी और चीज को दे दोगे। बहुत ज्यादा वात दोष है आपके शरीर में, मेंटल इश्यूज भी आने के चांसेस हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज आने के चांसेस हैं। हम्म। तो आपको अगर से निकलना है, कुंभक करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। साफ बता रहा हूं। बाकी सब सपोर्ट आप जो मर्जी ले लो, हम मना नहीं करेंगे आपको, मगर ये जरूर कहेंगे कि आपके शरीर का बल बढ़ाएं, जिससे कि आप निकल जाएं इस प्रॉब्लम से, और मल्टीपल प्रॉब्लम जो आने वाली हैं। ठीक है। Swamiji, a lady here called Vishali, she's suffering from rheumatoid arthritis, right? So can she come out of this issue? If you want, I can spotlight her. Yeah, there नहीं, you are. हाँ हाँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ठीक है। पर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, इसको अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ठीक हो सकता है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? देखिए, आप कुछ भी करें अपनी लाइफ में, आपकी फ्रीडम है, आपकी आज़ादी है,
मगर आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। इतनी तो जिम्मेदारी भी है ना आपकी, इतनी जिम्मेदारी तो है। आप यहाँ पे वेबिनार में आए, कुछ लोग आते हैं निकल जाते हैं, वो कहते हैं अरे जी बड़ा महंगा है ना। भाई उनको अपनी लाइफ से प्रेम थोड़ा ही है। पर हम क्या इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते। इफ somebody wants to die, what can we do? अगर दुनिया किसी को अगर खत्म कर रही है और एक गलत निष्कर्ष निष्कर्ष पर पहुंचाती है, इन्फेरेंस निकालती है, रूमेटाइड आर्थराइटिस ठीक तो होगा ही नहीं। She wants to say something. हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। Namaste, Swamiji. नमस्ते। I'm suffering from rheumatoid arthritis as well as thyroid from last more than 15 years. और मेरा एज अभी 35 है। हम्म। मेरे बॉडी में ऑलमोस्ट हर जॉइंट में इन्फ्लेमेशन था। अभी मैंने बीच में आयुर्वेदिक भी ट्राई किया, बट वो भी कुछ हेल्प नहीं किया, तो अभी एलोपैथिक स्टार्ट किया है। दोनों घुटनों में पानी हो गया था, एक लेफ्ट शोल्डर में भी पानी हो गया, उसमें भी इंजेक्शन दिया स्टेरॉइड का। स्टेरॉइड देखो, स्टेरॉइड ना इलाज आई नहीं है। स्टेरॉइड इलाज नहीं अंडरस्टैंड, है इसीलिए मैं। स्टेरॉइड। हाँ, आपकी आवाज ना कट रही है। ओके। मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है। आपको भी समझ में, सबको समझ में आएगा जो जो यहाँ पे है। तो पहले तो आप समझो, फिर देखो कि वो इलाज स्टेरॉइड का क्यों दे रहे हैं। क्योंकि ऑप्शन नहीं है, इम्यूनिटी हाई है तो उसको क्रैश करने के लिए स्टेरॉइड दे रहे हैं। बट कोई इम्यूनिटी को क्रैश करता है क्या? ये बड़ी अजीब सी बात है। आप अपनी सेना को कमजोर बनाओगे क्या? अपने देश की सेना को, आर्मी को कमजोर बनाओगे आप? नहीं। तो आपके शरीर की आर्मी को कमजोर बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि वो आपको ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। और एक बार आपकी आर्मी खत्म हो गई तो आपके बचने का कोई भी चांस नहीं है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता क्या है? मुझे एक बात बताइए, आपका शरीर क्या केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ था? वॉज इट डिजाइन टू कंज्यूम केमिकल्स? नो। यू डोंट पुट डीजल इन अ पेट्रोल व्हीकल। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालते हो क्या? नहीं डालते। तो ये शरीर अगर केमिकल खाने के लिए डिजाइन नहीं है तो इसमें केमिकल डालना अच्छी बात है, साइंस है ना। बचपन से तो यही सिखाया जा रहा है कि केमिकल खाना, दवाई खाना साइंस है। ये कहां से साइंस हो गया, पहले तो ये बताओ। इज दिस साइंस? when the body is not designed for chemicals, from childhood you are taking chemical, isn't it? A 2 kg infant is born, and on the name of vaccination and immunization you do how many chemical input in the body? 22 to 28 different kinds of vaccines and chemicals, isn't it? And if the science has advanced, or medical, what you call as medical science, there is no science in medical science. But what you call as medical science, if it has advanced so much, so why so much of a disease is there? In fact, every disease is increasing. तो पहली बात समझिए, आपने गलती कहाँ की? यू आर पुटिंग केमिकल्स इन दिस बॉडी विच इज नॉट डिजाइंड फॉर केमिकल इनटेक। आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालते हो और कहते हो इंजन खराब हो रहा है, होगा ही, क्या करें? सो वेन एवर द बॉडी गेट्स इन टू रिस्क, if the body is not designed for chemical intake, the moment you put a pill inside the body, the immunity goes up. Because body thinks you are putting something unwanted. So I have to neutralize it, throw it out of the body. 95% of the chemical that you eat or take or drink or take injection, the body tries to throw out 95% of that chemical. So your body gets used in doing something which is it is not supposed to do. It is supposed to utilize food, do metabolism, but it is neutralizing the chemical that you are taking. And how it will neutralize? By enhancing the immune factors. तो आपको टेस्ट करेंगे, कहेंगे कि देखो प्रोलैक्टिन लेवल हाई है, वाइट ब्लड सेल हाई है। ये सब क्या है? व्हाट आर दीज? दीज आर इम्यून फैक्टर्स। सेना के अलग अलग अंग हैं। तो आपका इम्यूनिटी
बढ़ता है जब आप एक केमिकल खाते हो। अगर सपोज करो डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर से मॉर्निंग 2 टैबलेट, आफ्टरनून 3 टैबलेट, नाइट 2 टैबलेट, जब आप डॉक्टर के बताते ये लिखता है ना वो, तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर प्रोवोकिंग योर इम्यूनिटी टू राइज अप अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी हैव डन, द होल वेस्ट हैज डिस्ट्रॉयड द फूड कल्चर ऑफ द होल वर्ल्ड। इन फिरंगियों ने पूरी दुनिया का फूड कल्चर बर्बाद कर दिया, डॉलर छाप छाप के, डॉलर को चलाने के लिए। तो आप जो भोजन करते हैं वो सब पैकेज है, केमिकली प्रोसेस्ड है, एवरीथिंग इज प्रोसेस्ड, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड। Now, your body doesn't recognize these things because this is not naturally born. आपका शरीर केवल प्रकृति में जो प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ है उसी को पहचानता है। एक गाय को मांस खिला के दिखाओ, एक शेर को घास खिला के दिखाओ, नहीं हो सकता, बिकॉज द बॉडी रिकग्नाइजेज इट्स फूड। ओनली ह्यूमन बीइंग हैज have become so insensitive, they don't know, they have to ask somebody, मुझे क्या खाना है? जैसे कि आपके पास शरीर है ही नहीं, भूत बन के घूम रहे हैं। डाइटिशियन को पूछेंगे मुझे क्या खाना है, अरे फूड इज अबाउट योर बॉडी, यू आर नॉट आस्किंग योर बॉडी। ऐसा लग रहा है सब भूत बने फिर रहे हैं दुनिया में, उनको मालूम उनके शरीर ही नहीं है। तो ये भोजन जब आप करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि इट इज नॉट व्हाट योर बॉडी रिकग्नाइजेस। एनवायरमेंट खराब कर दिया हमने ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी। आप जो सांस लेते हैं वही खतरा है कि नहीं है? आप जो सांस लेते हैं इट इज अ डेंजर टू योर बॉडी। ना एवरी टाइम देर इज अ यू आर गिविंग योर इम्यूनिटी दोज चांसेस वेयर इट हैज टू कीप इट सेल्फ अप ऑलवेज। इतना खतरा। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव सोशल रिस्क। एजुकेशन, ब्रिटिश मॉडल ऑफ एजुकेशन समझ ही नहीं आता क्यों पढ़ाई कर रहे हैं वो, जिसका इस्तेमाल आपने कभी नहीं किया। वॉट यू हैव रेड इन योर स्कूल, हैव यू एवर यूज इट इन योर लाइफ? हर मैजेस्टी को खुश करने के लिए एक एजुकेशन सिस्टम डाल दिया ताकि वो नौकरी मिल जाए, मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए, पढ़ लिख लेगा, डिग्री मिल जाएगी तो नौकरी। अब डिग्री से नौकरी नहीं मिलने वाली अगले 10 साल में, स्किल से नौकरी मिलने वाली है। खतरा है एजुकेशन। कॉर्पोरेट कल्चर खतरा है। ये बर्नआउट क्रिएट करेगा, ये आपकी इम्यून सिस्टम को उठाएगा, और इम्यून बार बार उठेगी तो इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं ना। तब उसे बैठाने के लिए आप स्टेरॉइड खिलाया जाएगा फिर आपको। सबसे पहली चीज क्या करना है? योर बॉडी शुड हैव दैट काइंड ऑफ अ टॉलरेंस वेयर इट इज एबल टू बेयर, इट हैज टू बी दैट मच रेजिलिएंट that even though you have disturbed the whole ecosystem, still it has to bear it। इसको झेल सकने की क्षमता होनी चाहिए। क्या आप बढ़ा रहे हैं उसको? एक सिंपल टर्म्स में मैं आपको पूछता हूं, याद है आपको अपने दादा दादी याद है? यू रिमेंबर योर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड यू? जस्ट 2 जनरेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट 2 जनरेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड यू? वो शरीर से ज्यादा जोर लगा सकते थे, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, आप नहीं लगा सकते। उनको थायराइड वगैरह था क्या दादी नानी को? सुना भी नहीं होगा उस टाइम पे। डिफरेंस क्या है? वो शरीर से ज्यादा जोर लगा सकते थे, आप नहीं लगा सकते। जोर कैसे लगाते हैं? हाउ डू यू मेक एफर्ट? सांस रोक के लगाते हो कोई भी जोर? बिना सांस रोके लगा सकते हो कोई जोर? क्वेश्चन मार्क। क्या बिना सांस रोके कोई भी जोर लगा सकते हो आप? चलना, उठना, बैठना, सीढ़ियां चढ़ना, काम करना, बोलना, सोचना, खींचना, बैलेंस करना, क्या ये कोई भी जोर बिना सांस रोके आप लगा सकते हो? एक्सपेरिमेंट करके देखो, नहीं लगा सकते। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर एंड यू?
उनकी सांस रोकने की क्षमता ज्यादा थी, आपकी सांस रोकने की क्षमता कम है। दिमाग खोलिए, कोई फिरंगी नहीं बताएगा आपको। आप समझदार लोग हैं, इस देश की मिट्टी में पैदा हुए हैं ना आप लोग। आप समझदार हैं। पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते हैं, मूर्ख होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, गूगल करके पढ़ लो। 25 साल का एजुकेशन 70% इंटेलिजेंस खत्म कर देता है इंसान का। अपने कॉमन सेंस से, अपने एक्सपीरियंस से ये चीजें देखने की कोशिश कीजिए, आपको समझ आएगा। आप लोग समझदार लोग हैं, और जब समझ आएगा तब आप सही कदम उठाएंगे। आपकी लाइफ किसी की बात को मान के अच्छी नहीं होगी। डॉक्टर ने कह दिया, आपने मान लिया, आपने तो ये भी नहीं पूछा कि किसको ठीक किया, कम से कम इतना तो प्रूफ दो। आपकी लाइफ कब अच्छी होगी? जब आपको लाइफ का सेंस आएगा। इट इज वेरी इजी टू करेक्ट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, प्रोवाइडेड वी अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। सांस रोकने की क्षमता बढ़ाएंगे, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। साफ बता रहा हूं, कुंभक करेंगे तो ही होगा, नहीं करेंगे। और एक और चीज है, आपको तो स्टेरॉइड के इंजेक्शन डाले जा रहे हैं। आपकी लाइफ कितना खराब होने वाली है जरा इमेजिन करो। नेक्स्ट 3 इयर्स के बाद में आपकी लाइफ, आप उठने लायक नहीं बचोगे। आज शुरू कीजिए, अपनी लाइफ अच्छी कीजिए, ऐसे डिजीज को रिवर्स कीजिए इमीडिएटली। हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप जो भी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो, ट्रीटमेंट ले रहे हो, ना लें। पहले अपने बॉडी में, सब ड्रग एडिक्ट हैं आप, सब ड्रग एडिक्ट हैं। एडिक्शन इतनी जल्दी नहीं छोड़ते, एक दिन में नहीं छोड़ते। यू क्रिएट द स्ट्रेंथ विद इन योर सिस्टम so that you are able to live better even with this distorted ecosystem. And you will see, guaranteed, 100% guaranteed, your life will become much, much better. It will just transform to the next level. आपका शरीर ठीक करेगा, दुनिया की कोई ताकत ठीक नहीं कर सकती आपको। उसका बल बढ़ाइए। कुंभक वो तरीका है जिससे उसका बल बढ़े। स्वामी जी, सीमा जी पूछ रही हैं, वो 35 साल से हाइपोथायरॉयडिज्म, ओवरवेट, जॉइंट पेन, स्वेलिंग, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, लेथार्जी, इन्फ्लेमेशन से सफर कर रही हैं। तो क्या जिसको 35-40 साल पुरानी क्रॉनिक एलिमेंट होती है, क्या वो इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। देखिए, एक और तरीके से मैं आपको ना 1000 तरीके से बता सकता हूं कि आप कैसे ठीक हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सारे तरीके समझ में आए ही, और जरूरी नहीं है कि समझ में आए तो भी आप ठीक हो जाएं। इट इज नॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट इज अबाउट प्रैक्टिस। यू मेक योर बॉडी इनटू एन एंटिटी, और you give the body that kind of a strength where it recovers itself. प्रैक्टिस करेंगे ठीक हो जाएंगे। कोई भी बीमारी आज के टाइम पे आप देखेंगे, उसका एक सिम्टम तो होता ही है। वो क्या होता है? कमजोरी फील होती है। हाँ या ना? हाँ, सब तो कैमरा बंद करके बैठे हैं, कल हो ना हो हम, हाँ आज तो मिल लीजिए जरा, ठीक है तो एक प्रॉब्लम तो सबको हो ही रही है, एनर्जी लेवल्स कम है। तो एनर्जी आपके बॉडी की अगर कम हो जाती है, तो इसका मतलब क्या वो चीज है जो आपके बॉडी में एनर्जी बनाती है? उसको एक नाम से जानते हैं, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना? आप गूगल करें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो पता चलेगा। वो पावर हाउस है आपके सेल का, आपका सेलुलर स्ट्रक्चर, उसके अंदर एक ऑर्गेनेल है, उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ इस वक्त में पूरी ह्यूमैनिटी की खराब हो चुकी है, पूरी ह्यूमैनिटी की खराब हो चुकी है साहब, पूरी ह्यूमैनिटी की। 100 साल में इन फिरंगियों ने पूरी ह्यूमैनिटी को मरने के कगार तक पहुंचा दिया। सबसे मूर्ख प्रजाति है, ना ऐसा मूर्ख कभी हुआ इस दुनिया में, ना आगे होगा, और हम उनके गुलाम। कमाल, कमाल की बात है। माइटोकॉन्ड्रिया का हमने दुनिया का सबसे पहला साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया, रिलेटिंग कुंभक विथ माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ।
in 4 weeks time we got breakthrough result. कुंभक माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ को ड्रास्टिकली इंप्रूव करता है, माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी को बढ़ाने की तरफ में काम करता है, उसका इन्फ्लेमेशन कम करता है, उससे उसकी एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाता है। अगर ये एक्सपेरिमेंट यूएस में मैं कर रहा होता तो मुझे नोबेल अवार्ड मिल जाता, मगर यूएस वाले नोबेल अवार्ड उसी को देते हैं जिसको किसी देश में बैठाना है वो गुर्गा बना के, मालूम है आपको। अपने दिमाग में ना इन फिरंगियों के लिए इज्जत हटा दीजिए, इसमें आपको इन लोगों ने बर्बाद कर दिया आपको। और आज भी अगर आप होश में नहीं आओगे तो कौन बचाएगा आपको? कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेने वाला, कोई डब्ल्यूएचओ नहीं आने वाला आपको बचाने के लिए, कोई हॉस्पिटल कोई डॉक्टर नहीं आने वाला आपको बचाने के लिए। आपका शरीर बचाएगा आपको, उसको खराब मत करो किसी की बात मान के। तो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ इंप्रूव करना है आपको, हाँ या ना, ये बता दीजिए। आपको अपने एनर्जी लेवल्स बढ़ाने हैं कि नहीं बढ़ाने हैं? तो कुंभक करना पड़ेगा। मैं आपको जेनेटिक कॉन्सेप्ट से भी समझा सकता हूं। अगर आपको अपने जेनेटिक ठीक करना है तो कुंभक एकमात्र तरीका है। हमारे पास रिजल्ट है साहब, हमारे पास में लैब रिपोर्ट है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट कुंभक ठीक कर। तो बहुत तरीके से इसको समझा जा सकता है, मगर अभी जो हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं उसमें इलाज नहीं है, दवाई से कोई इलाज नहीं है। तो आपको उससे आगे जाना पड़ेगा। जरूरत बहुत हो तो ही आप केमिकल मेडिसिन लें, मगर लॉन्ग टर्म केमिकल मेडिसिन लेना क्राइम होना चाहिए। आइडियली इसको क्राइम की कैटेगरी में डालना चाहिए। इसको साइंस बोल रहे हैं हम। बहुत गलत चीज हो रही है। आप थोड़ी आंखें खोलें, क्योंकि आपकी वजह से ही सब कुछ बदलेगा। आप बदलेंगे, आप हेल्दी होंगे, आप दूसरों को इंस्पायर करेंगे, तो दुनिया हेल्दी होगी, हमारा समाज हेल्दी होगा, हमारे आगे के बच्चे हेल्दी हो पाएंगे। है ना? कोई भी आइडिया से नहीं चलना। आइडिया पे रिलीजन बेस्ड होता है। हमारे देश में ना रिलीजन नहीं है, धर्म है। धर्म ट्रूथ पे बेस्ड होता है, आइडिया पे बेस्ड नहीं होता। ठीक है ना? तो आप अपनी आंखें खोलें, आप लोग सब समझदार लोग हैं। Swamiji, we have a participant from Ashtang who says that I've been doing it customization for the last 1 year. My hypothyroidism was less severe, but now it has increased in the last 6 months. I do not know what it means because usually TSH की रीडिंग को ही लेके लोग थायराइड कंडीशन को डिफाइन करते हैं। उसको मैं एक और तरीके से आपको बताता हूं कि there are lot of situation which happens at this point of time. एक सिचुएशन क्या होती है वो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। सपोज देर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द इकोसिस्टम। पृथ्वी पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक क्वांटिटी होनी चाहिए। बैक्टीरिया, वायरस, इनका का ना एक नंबर होना होता है। मगर ये ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकेले नहीं जी सकते, किसी के शरीर में जाके जिएंगे। सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। तो आपने बड़े जानवर खत्म कर दिए, मगर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप खत्म नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अब डेंसिटी देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो उतना ही है, मगर जिनमें रहना है वो कम हो गए। तो हर एक जानवर, हर एक बड़ा शरीर इंफेक्शन प्रोन हो गया। अब उसके शरीर में नाजायज माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे बसने के चांस बढ़ गए। अब इन्फेक्शन जरूरी नहीं है कि हर एक इन्फेक्शन आपका डिटेक्ट हो या उस वो सिम्टम दिखाए। इंटरनल हिडन इन्फेक्शन भी होते हैं। इन्फेक्शन एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, और अगर हमें लगता है कि इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में हम सब कुछ जानते हैं तो हम 10% भी नहीं जानते। हालांकि इन्फेक्शन के केस में मैं फिर भी आज के टाइम पे सजेस्ट करूंगा, यू यू कैन टेक एंटीबायोटिक, केमिकल मेडिसिन आप ले सकते हैं। 20% ऑफ टोटल डिजीज इन्फेक्शियस होता है, उसमें आप केमिकल ट्रीटमेंट की तरफ में जा सकते हैं, क्योंकि हमने नेचुरल पे काम ही नहीं किया, ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल है। तो अगर इन्फेक्शन आपके अंदर किसी वजह से आ सकता है,
अगर आपने एक हॉस्पिटल विजिट किया तो आपके अंदर इन्फेक्शन आ सकता है, सबसे ज्यादा चांस है। आप दोस्त को देखने के लिए हॉस्पिटल गए और वहां से आप एक इन्फेक्शन कैरी करके ले आए, जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन है, एमडीआर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन। अब वो इन्फेक्शन आपके शरीर में लगा रहेगा। कई लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, यूटीआई, वो जाएगा ही नहीं, आप कुछ भी कर लो। फीमेल्स में फंगल इन्फेक्शन होने, खास करके जेनाइटल एरिया में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत होते हैं। आप वो इन्फेक्शन हटा के देखो, एंटी फंगल कितना भी खाओ, वो वापस आ जाएगा, जाएगा ही नहीं। गट का इन्फेक्शन इस वक्त में, जिसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, वो बहुत है। इतना ही नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, पिट्यूटरी फंक्शन डिस्टॉर्ट हो रहा है। वन ऑफ द रीजन पिट्यूटरी फंक्शन, जिसकी वजह से टीएसएच हाई होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो आपका थायराइड से उसका कोई लेना देना नहीं है, पिट्यूटरी ग्लैंड से लेना देना है। तो जब आप खतरे की सिचुएशन में रहते हैं, एंजाइटी अगर आपकी होगी, तो टीएसएच हाई होगा। घर में कुछ अनहोनी हो गया, आपका टीएसएच हाई होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। मगर वो बीमारी नहीं है, बॉडी में अगर स्ट्रेंथ है तो उसको एडजस्ट कर लेगा, मगर रिपोर्ट में आ जाएगा, वो आपको टैग कर दिया जाएगा थायराइड। उसके बाद आप बोलेंगे देखो टीएसएच तो बहुत है। अब वो किस सिचुएशन, क्या इन्फेक्शन की वजह से टीएसएच हाई हो, शरीर में खतरा आ गया? क्या आपके सोशल सर्कमस्टांस ऐसे हैं जहां पे कि कुछ इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से आपके अंदर डर बैठ रहा है? क्या आपकी साइकी में कहीं ना कहीं एज की वजह से भी डर बैठ रहा है? हजारों तरीके हैं जिसकी वजह से टीएसएच हाई हो सकता है, मगर आपको एक ही टैग दिया जाएगा, थायराइड। नॉट राइट। कभी कभी क्या होता है, आपने ज्यादा वर्कआउट कर लिया, क्योंकि जिंदा आप ज्यादा रहना चाहते हैं, किसी ने बोला कि वर्कआउट करो बहुत जबरदस्त, ये आपका 4 घंटे का वर्कआउट होना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साल भर तो आराम करते हैं, मगर न्यू ईयर आता है तो रेजोल्यूशन पास करते हैं कि कल से तो हमें बहुत सारे वर्कआउट करना है, या फिर एक्सरसाइज करनी है, ये करना है। और सडनली आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, टीएसएच हाई हो गया। हाँ, कुंभक आपने, आपको करने के लिए बोला, पहले शुरुआत में तो जोश होता है, उसके बाद कुंभक करना बंद कर दिया, फिर सडनली कहीं से वीडियो देख ली, स्वामी जी तो डांट रहे हैं, अरे सच में कुछ गड़बड़ हो गई, तो चलो कल से पक्का कुंभक। अब तो हमें सुपर ह्यूमन ही बन जाना है। कुंभक बहुत पावरफुल चीज है, संभालना पड़ता है इसको। इसको दुनिया में अगर हम ओपन कर रहे हैं तो हम ये भी एक फैक्टर देख रहे हैं कि लोग बाग जिम्मेदारी से इसको संभालेंगे। तो कोई भी चीज बहुत आराम से शुरू करना चाहिए, अपने शरीर को टाइम देना चाहिए। बाकी सर्कमस्टांसेस आप देखो, कुंभक आपको ठीक ही करेगा। लेकिन सपोज करो आपने काफी दवाइयां खा ली डर के मारे, डॉक्टर के पास में गए और डॉक्टर ने कहा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अपने काफी दवाइयां खा ली, आपने तो क्रैश कर दिया ना अपने शरीर को। शरीर भी एक लेवल तक ही झेल पाएगा, मैं आपको बताऊं। उसके बाद में शरीर भी यही बोलेगा, भैया बहुत हो गया, दुकान बंद करते हैं। जिस दिन आपके शरीर ने बोल दिया ना दुकान बंद करते हैं, फिर सोच लीजिए कौन बचाने वाला है, फिर तो टिकट कट जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। प्लीज हैंडल द कुंभक प्रॉपरली, डू इट जेंटली। हड़बड़ ना मचाएं जीवन में, बहुत लालच नहीं करना, बहुत ज्यादा भी अपने बॉडी को टॉर्चर नहीं करना। जितना काम लेते हैं उतना उसको आराम भी देना चाहिए, है ना? तो देर कैन बी मल्टीपल रीजन बिकॉज ऑफ विच समथिंग हैज हैपन। बट टेल मी, मुझे एक गारंटी आप दे सकते हैं कि वो सिचुएशन ठीक नहीं होगी 3 महीने बाद, 6 महीने बाद? लेकिन उससे पहले ही पैनिक में आके आप शरीर को और बर्बाद कर सकते हैं कि नहीं? अगर एक कंडीशन आ गई जहां पे कुछ नंबर्स ऊपर नीचे हो गए, कुंभक जो कर रहा होगा ना, उसको तकलीफ इतनी ज्यादा नहीं हो सकती, गारंटी है। नंबर दिख जाएगा जरूर ऊपर नीचे, मगर तकलीफ उतनी नहीं होगी। Swamiji, most people are worried about high TSH levels. We also have somebody उसका TSH बहुत कम रहता है, T4 T3 normal है. So कम TSH, what does it signify when TSH is कम बिल्कुल? टीएसएच का मतलब है आप तो ब्लिस में हो, परम आनंद की स्थिति में। आपको दुनिया की कोई ताकत परेशान नहीं कर सकती।
इसमें भी परेशानी है क्या आपको, ये बताओ। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में भूकंप आ रहा है कि लड़ाइयां चल रही है, आप मौज में रहोगे। तो आपको क्या परेशानी है इसके अंदर कि मैं परेशान नहीं हो रहा, नहीं हो रही? क्यों परेशान हो रहे? T3 T4 नॉर्मल है, तो क्यों परेशान? TSH आपका एड्रिनल फटीग या फिर कह लीजिए एंजाइटी का कोशंट भी दिखाता है। हाई TSH का मतलब हाई एंजाइटी, लो TSH में लो एंजाइटी है, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे ही होना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और TSH का मामला एंजाइटी के साथ में आता है, डर के साथ में रिलेटेड है। Thank you, Swamiji, for taking out time to answer questions and doing live diagnosis and clearing a lot of doubts that people have in their minds. So it's getting close to